Today we will discuss about class 10 chapter 5 consumer rights. What is consumer rights? The basic term of consumers any person who buys a commodity or service for use is known as consumer. You can write this definition in notebook. You can take screenshot and write down. What are the consumer's rights? Consumer has 6 rights. These are right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to be seek redressal, and right to consumer education. Now we will discuss about it in details. Consumer exploitation. What is consumer exploitation? Consumer exploitation is a situation in which producer or trader delivers much less than what they had initially promised to consumers. And what is consumer movements? Consumer movement is a growing realization that the interest of consumers need to be protected against unscrupulous sellers. Consumer protection are all those measures that protect the rights of the consumer. This is the very important COPRA, Consumer Protection Act. This act was passed in 1986. This act provides for the establishment of consumer disputes redressal agencies at district, state, and national level. COPRA is very important for your exam. The full form of COPRA is Consumer Protection Act and it was passed in 1986 and it provides to consumers dispute redressals agency and three levels. First is district, second is state, and third is national level. Now, what is egg mark? Egg mark, this is very important. Egg mark is a seal of government that guarantees the quality of few selected agricultural products. It is implemented under Agriculture Product Act 1937, which was amended in 1986 with Consumer Protection Act. It products like honey, masala, spices, etc. It is very important. This egg mark, this symbol is very important for the agricultural goods and things. What is BIS? BIS stands for Bureau of Indian Standard. What is the meaning of BIS? BIS is Bureau of Indian Standard. This protects the consumers from lack of quality and banning standard of industrial and consumer goods. On the other hand, egg mark is meant only for agriculture products. This is the basic difference between BIS and egg mark. BIS is used for industrial and consumer goods and egg mark is used only for agriculture. This is the symbol of BIS. Now what is Codex Alimentarius Commission? This commission develops food standards, guidelines and codes of practice for production and international trade in food products. This commission is for food products. The consumers in the marketplace. Now what is the position of consumer in the marketplace? Consumer participate in the marketplace by using a particular product. Had there been no consumer, no company would exist. The status of consumer is more or less pathetic as far as consumer rights are concerned. You can take example of shopkeepers weighing less than should than he should company making false claims on packs.
Then there are local sweetmeat sellers adulterating raw materials to produce land laddus or burfis. You can recall the case of dropsy because adulterated mustard oil, no matter how bad quality you get, chances are you will get rude response from the shopkeeper if you dare to complain. नाउ इसमें हमने देखा है कि कंज्यूमर का जो मार्केट प्लेस में स्थान है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि वो मार्केट में एडल्टरिंग होता है, वहाँ पे मार्केटिंग में एडल्टरिंग रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस एंड लड्डूज एंड, तो एडल्ट्री जो मिलावटी सामान मिलाते हैं, सामान कम देते हैं और उसको मतलब बोलने के बाद उनका रिस्पांस अच्छा नहीं रहता है, तो ये कंज्यूमर का मार्केट प्लेस में कंडीशन है। कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर मूवमेंट, व्हाट इज कंज्यूमर मूवमेंट? तो इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन टेल यू, जब भी आप के साथ कोई गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ जब आप आवाज़ उठाते हो तो वो एक मोमेंट में बदल जाता है। तो एक व्हाट इज कंज्यूमर मोमेंट? इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। ब्लैक फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है? मिलावट, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, अंडरवेइंग एटसेट्रा। होर्डिंग क्या होता है? जमाखोरी, जब कोई सामान को बहुत बचा के रखा जाता है, ट्रेडर्स रखते हैं और जैसे ही वो महंगा हो जाता है उसके बाद उसको सेल करते हैं। इट वॉज फ्रॉम 1960 दैट द कंज्यूमर मूवमेंट बिगेन इन इंडिया। तो कंज्यूमर मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1960। इन द 1970s कंज्यूमर मूवमेंट वाज मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू राइट आर्टिकल्स, होल्डिंग एग्जीबिशंस, बट देयर आर there has been an upsurge in the number of consumer groups in recent times. The level of dissatisfaction with the sellers and service providers was such an extent that the consumers had no choice but to raise their voice. After many years of organized struggle, the government was forced to take notice. Finally, the Consumer Protection Act (COPRA) वाज इनेक्टेड। तो जो कोपरा 1986 है वो किसके वजह से हुआ? कंज्यूमर मूवमेंट के वजह से इस्टॉब्लिश हुआ। और एक कब इस्टॉब्लिश हुआ? 1986 में। कंज्यूमर इंटरनेशनल, व्हाट इज कंज्यूमर इंटरनेशनल? इन 1985 यूनाइटेड नेशंस adopted the UN guidelines for consumer protection. This was a tool for nations to adopt measures to protect consumers and for consumer advocacy group to press their government to do so. At the international level, this has become the foundation for consumer movement. Today, Consumer International has become an umbrella body of 24 organizations from over 100 कंट्री। तो जैसे हमारा कोपरा 1986 हमारे कंट्री के अंदर कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ऐसे ही कंज्यूमर इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशन द्वारा इस्टेब्लिश हुआ है 1985 में, वर्ल्ड लेवल पे कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट। नाउ जो सेफ्टी है, चाहे आप कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर कोई भी सामान खरीदते हो, तो जो सेफ्टी है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर एवरीथिंग। Reggie is suffering, so how a hospital due to negligence by the doctors and staff in giving anesthesia and crippled student for life। इसमें हम देखें कि रेजी जो है, रेजी को कुछ प्रॉब्लम होता है और उस प्रॉब्लम को लेकर वो जाता है, ये एनसीईआरटी के बुक में है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उस प्रॉब्लम को लेकर वो हॉस्पिटल में जाता है और उस हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया क्या होता है? जैसे आपको कोई भी ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन करना है डॉक्टर को, तो एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया में क्या होता है? एनेस्थीसिया का ऐसा डोज होता है जो आप उस समय के लिए आप मतलब बेहोश रहोगे, फेंट में जो एनेस्थीसिया है आप बिल्कुल बेहोश रहोगे, और जैसे ही ऑपरेशन खत्म हो जाएगा धीरे धीरे एनेस्थीसिया का डोज और का इफेक्ट कम होता जाएगा और आप ठीक हो जाओगे। बट इसमें क्या होता है, इस बच्चे को ऐसा एनेस्थीसिया दे दिया जाता है कि जिससे वो लाइफ टाइम के लिए जो है हैंडीकैप्ट हो जाते हैं, और उसके वजह से इसको कंज्यूमर, और ये जाता है कंज्यूमर कोर्ट में जाता है और कंज्यूमर कोर्ट में इसको कंपनसेशन मिलता है।
5 लाख के करीब कंपनसेशन मिलता है। तो अगर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होता तो इस बच्चे को बिल्कुल कभी नहीं मिलता ये जो 5 लाख कंपनसेशन है। ठीक है। राइट टू बी इन्फॉर्म, जो कंज्यूमर को क्या है, कंज्यूमर को राइट्स है कि उसको सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोई भी आप गुड्स खरीदने जा रहे हो तो उससे रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको मिलना चाहिए। ठीक है। और वो कौन इन्फॉर्मेशन कौन देगा, वो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूसर है जो सामान बेच रहा है या जो सामान दे रहा है या मीन्स जो जिसने सामान को बनाया है। व्हाट इज कंज्यूमर टू बी इन्फॉर्म्ड, अ consumer has the right to have correct information about a product. There are rules which make mandatory to mention ingredients and safety features. Pack of product, proper information helps customer to make informed buying decision. पैक और प्रोडक्ट आल्सो नीड्स टू मेंशन द एमआरपी। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हम पढ़ते हैं एमआरपी क्या है, तो एमआरपी का फुल फॉर्म तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एंड अ कंज्यूमर कैन कंप्लेन इफ द सेलर आस्क मोर देन एमआरपी, अगर एमआरपी से ज़्यादा कोई सेलर पैसे मांगता है तो यू कैन कंप्लेन इन कंज्यूमर फोरम। इन रिसेंट टाइम्स द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज़ been expanded to cover various service provided by the government। अब जो आरटीआई आया 2005 में, ये भी बहुत इंफॉर्मेशन गुड्स के बारे में प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया enacted a law popularly known as RTI, Right to Information Act, which ensure its citizen all the information about the function of government department। The effect of the RTI Act can be understood from the फॉलोइंग केसेस। तो ये जो आरटीआई राइट टू बी इन्फॉर्म है, इसमें आरटीआई सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज द एग्जांपल ऑफ आरटीआई। Amrita, an engineering graduate, after submitting all the certificate and attending the interview for a job in the government department, did not receive any news of the result. The officials also refused to comply with her queries. She therefore filed an application using the RTI Act, saying that it was her right to know the result in a reasonable time so that she could plan her future. She soon got he कॉल लेटर। तो आपने देखा कि इन्होंने एग्जाम दिया था और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था, बट ड्यू टू आरटीआई इनको पूरा इन्फॉर्मेशन मिला और इसके बाद इनको कॉल लेटर भी आ गया और इन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। राइट टू चूज, व्हाट टू राइट टू चूज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट right to choose। A consumer has the right to choose from different options। A seller cannot just offer to sell only one brand to the consumer। The seller has to offer various options to the consumer। This right is usually enforced to law against monopoly trade। मोनोपोली मतलब कोई भी शॉपकीपर कोई एक सामान नहीं बेच सकता कि ये आप, और ऐसे मजबूर नहीं कर सकता कि आपको यही सामान लेना है। उनके पास वैरायटी ऑफ थिंग्स होने चाहिए सो दैट कि कंज्यूमर कोई भी सामान चूज करके ले सकता है मार्केट से। व्हेन चॉइस इज डिनाइड, अगर देखिए इसमें इस पूरे में एक स्टोरी है। एक स्टोरी में ये है कि जब एक इसमें गर्ल है जो दिल्ली के किसी कोचिंग सेंटर में अपना एडमिशन लेती है, बाद में इसको पता चलता है कि कोचिंग सेंटर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, तो वो चाहती है कि जो उसने फीस जमा किया है, उसने 2 इयर्स के फीस जमा किए हैं और उस 2 इयर्स के फीस को वो वापस रिटर्न चाहती है, बट जो इंस्टीट्यूट है वो मना कर देता है हम फीस नहीं देंगे। तो ये कहाँ कोर्ट में जाती हैं और कोर्ट इनको फैसला देता है और कोचिंग को डायरेक्ट करता है कि इनके फीस को रिफंड करें। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंज्यूमर होता है उसके पास चॉइस है, उसके पास ये राइट है कि वो चूज करे, उस अपने चॉइस के हिसाब से कोई सामान ले चाहे कोई सर्विसेज ले। अदरवाइज वो नहीं चाहता है तो उसका पैसा रिफंड होना चाहिए। वेयर शुड कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस, अब कंज्यूमर को कहाँ पे जाना चाहिए सो दैट कि ही कैन गेट जस्टिस, जिससे जहाँ पे उसे न्याय मिल सके। ठीक है। तो राइट टू रिड्रेसल, रिड्रेसल मीन्स क्या होता है, जो भी समस्या समाधान है, कहाँ पे हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, ये हमारा राइट है।
ठीक है। इफ अ कंज्यूमर गेट्स अफेक्टेड बाय द false promises made by the producers or suffers because of manufacturing defect। कभी कभी कोई सामान होता है इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, जैसे फॉर आपने वॉशिंग मशीन लेने गए, चाहे मोबाइल लेने गए, चाहे इस चीज लेने गए, तो उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और आपने गलती से ले लिया है और उसको वापस करना चाहते हो और नहीं कर रहा है शॉपकीपर चाहे प्रोड्यूसर, तो उस केस में यू कैन गेट जस्टिस फ्रॉम द कंज्यूमर कोर्ट। Has the right to seek redressal. Suppose you took a mobile connection and the bill shows many hidden charges which were not explained to you earlier, or the mobile company activated a ringtone without your permission. Then you can go to the consumer court to put your case. Now you can understand if there is any problem with your bill of mobile and making false claim by the mobile company, then you can go to the consumer court and consumer court will solve the problems in a time. Let us take the case of Prakash. Prakash. He had sent a money order. He has sent a money order to Blaze for his daughter's marriage. The money did not reach his daughters at the time when she needed, or did reach months later. Prakash filed a case in district level consumer court in New Delhi. All the steps undertook आर इलस्ट्रेटेड बिलो। अभी देखिए एक आदमी है जो प्रकाश है, वो अपने घर पे मनी ऑर्डर भेजता है अपने डॉटर के मैरिज के लिए, बस वो जो पैसे हैं वो मनी ऑर्डर है उसको उस टाइम में नहीं मिल रहा है जिस टाइम उसको चाहिए, तो क्या करता है वो न्यू दिल्ली में केस करता है। प्रकाश गोज टू द पोस्ट ऑफिस टू सेंड मनी ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए स्टेप वाइज ये जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर को करने के लिए। मनी ऑर्डर मतलब आज के डेट में तो हम क्या कर रहे हैं कि पैसे को ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर दे रहे हैं। पहले क्या होता था, ये सब फैसिलिटीज नहीं थे, तो लोग क्या करते थे अपने पैसे लेके जाते थे, एक पोस्ट ऑफिस में जमा करते थे और एक मनी ऑर्डर फॉर्म भरा जाता था और वो दूसरे जिस पोस्ट ऑफिस में भेजना है उस पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर जाता था और वहाँ पे जिनके नाम से ये भेजते थे वहाँ पे ले लेते थे। तो क्या है कि प्रकाश जो है मनी ऑर्डर पोस्ट करने के लिए अपने पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं, किसके लिए, टू हिज डॉटर। फिर क्या होता है, प्रकाश कम्स टू नो दैट द मनी हैज़ नॉट रीच्ड हिज डॉटर। बट क्या होता है, इनको पता चलता है कि जो एक टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम में वो मनी ऑर्डर उनके डॉटर के पास नहीं पहुंच पाता है। ओके। प्रकाश इंक्वायरीज अबाउट द मनी ऑर्डर इन द पोस्ट ऑफिस। मनी ऑर्डर पोस्ट अभी क्या है कि ये इंक्वायरी कर रहे हैं मनी ऑर्डर के बारे में कि मेरा मनी ऑर्डर कहाँ है, अभी कब तक मिलेगा। ओके। द पोस्ट ऑफिस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्यूरीज सेटिस्फैक्ट्री। तो देखो जैसा कि हमेशा होता है कि अगर आप बैंक में जा रहे हो, आप पैसा जमा करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब वो पैसे कहीं आप ट्रांसफर किए नहीं गया तो आप बैंक में जाओगे चाहे पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो उनका रिस्पांस अच्छा नहीं होता, वो बोले हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जैसे जैसे कोई काम करोगे तो आपके सामने खुद ही ऐसा एग्जाम्पल मिलता जाएगा। तो सेम यही प्रकाश के साथ हुआ, जब प्रकाश ये पता करने की कोशिश की कि मेरा मनी ऑर्डर कहाँ है, कब तक जाएगा, अभी नहीं मिला, तो पोस्ट ऑफिस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मीन्स उनके क्वेरी का पूरा क्लियरली जवाब नहीं दे रहा था। प्रकाश गोज टू द लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर एडवाइस। अब क्या हुआ, इनके पास एक ही ऑप्शन बचा था कहाँ जाने के लिए, उपभोक्ता शिकायत केंद्र में यानी कंज्यूमर फोरम में ये गए। कंज्यूमर फोरम में क्या होता है, और अगर आज के डेट में देखा जाए तो आज के डेट में क्या होता है कि हम कंज्यूमर फोरम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, बट उस समय ऑफलाइन था तो उन्होंने ऑफलाइन फॉर्म भरा और जो जो रीज़न है उसको लिखकर उन्होंने कंज्यूमर फोरम में जमा कर दिया। ही हिमसेल्फ प्लीड्स द केस इन द कोर्ट। और उन्होंने अपने केस का खुद ही कोर्ट में पैरावी किया, नहीं वकील जो एडवोकेट रखते हैं उन्हें रखा, उन्होंने खुद अपने केस के बारे में सारी जानकारी को कोर्ट में दिया। कोर्ट जज वेरीफाइज द डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे देखिए ये खुद अपने बारे में सब सारी चीज़ बता रहे हैं और जो ये यहाँ पे जज हैं ये सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें कि इन्होंने जितने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए थे वो डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं कि नहीं है। द जज अनाउंस द कोर्ट वर्डिक्ट। और लास्ट में जज ने अपने कोर्ट का ऑर्डर का जो वर्डिक्ट है इन्होंने दिया। और कोर्ट जो ऑर्डर उन्होंने वर्डिक्ट में दिया कि उस ऑर्डर में उन्होंने पोस्ट ऑफिस को वार्न किया कि उनका पैसा देना ही है टाइम से। व्हाट इज कंज्यूमर फोरम। तो हमने देखा कि वो कंज्यूमर फोरम में जाते हैं, उनको वर्डिक्ट मिलता है और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट अब हमको जानना है कि कंज्यूमर फोरम होता क्या है। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज लेड टू द, हमने देखा कि कंज्यूमर मूवमेंट हुआ था जिसकी वजह से कोपरा 1986 इनेक्ट हुआ।
The consumer movement in India has led to the information of various organizations locally known as consumer forum or consumer protection councils. These guide consumers how to file case in the consumer court on many occasions. They also represent individual consumers in the consumer courts. These voluntary organizations also receive financial support from the government for creating awareness among the people. और कंज्यूमर फोरम का क्या है कि कभी कभी अगर आप केस करते हो तो कंज्यूमर फोरम आपके तरफ से कंज्यूमर कोर्ट में केस लड़ती है, और अगर कंज्यूमर से रिलेटेड बहुत सारे अवेयरनेस है उसको भी कंज्यूमर फोरम फैलाती है, और उसके लिए गवर्नमेंट भी उनको पैसे का हेल्प करते रहते हैं टाइम टू टाइम. If you are living in a residential colony, you might have noticed name of boards of residents of welfare association. If there is any unfair trade practice meted out to their members, they took up the case on their behalf. आपने देखा होगा कॉपी कॉलोनी में भी आपको कंज्यूमर फोरम कि कुछ लोग मिलेंगे जो मार्केट का सर्वे करते हैं और मार्केट में देखते हैं कि क्या गलत चीज़ें हो रही है, और अगर कोई चीज़ें ऐसी हो रही है तो उसके खिलाफ वो केस भी कंज्यूमर कोर्ट में पुट करते हैं. कंप्लेन रजिस्ट्रेशन, तो आप देखो ऑनलाइन जब आप कंप्लेन करने जाओगे तो आपको ऐसा फॉर्मेट मिलेगा जहाँ पे सारी डिटेल्स आपको भरने होंगे एज पर इंस्ट्रक्शन. बट एक कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन के बाद भी ये जो प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में टाइम लगता है. ये टाइम टेकन प्रोसेस है, बट इसमें प्रॉब्लम जो है आपकी कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है. कंज्यूमर कोर्ट्स, हमने देखा कंज्यूमर कोर्ट्स हम किस किस लेवल पे होता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे. जैसे एक नॉर्मल कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर स्टेट में जो हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, ऐसे ही इसका भी 3 लेवल्स है. हम उसको पढ़ेंगे क्या क्या 3 लेवल्स है. कंज्यूमर कोर्ट्स, दिस इज अ 3-tier quasi judicial system. The district level court deals with the case involving claims up to 20 लाख. तो अभी जो डेटा मैं देने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है. तो जो 20 लाख तक का केस है, अप टू 20 लाख यानी 20 लाख का केस जो है आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में डाल सकते हैं. एंड द स्टेट लेवल कोर्ट डील्स विद द केस बिटवीन 20 लाख टू 1 करोड़. और जो स्टेट लेवल का कंज्यूमर कोर्ट है वो 20 लाख से 1 करोड़ तक का केस देखती है. एंड नेशनल लेवल कोर्ट डील विद द केसेस विच इन्वॉल्व क्लेम्स एक्सीडिंग. और जब भी 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे का कोई केस है किसी कंज्यूमर का, तो नेशनल लेवल पे डायरेक्ट नेशनल लेवल का जो कंज्यूमर कोर्ट है वहाँ पे केस फाइल कर सकता है. तो आपने देखा कि अप टू 20 lakh district, 20 lakh to 1 crore state, and more than 1 crore is national level. If a case is dismissed in a district level or otherwise, if case is dismissed district level, the consumer can also appeal in state and then it national level. और अगर मान लीजिए कितने भी पैसा हो वहाँ पे पैसा बाउंडेशन नहीं होगा. जब भी अगर आपका केस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसमिस हो गया है तो स्टेट लेवल पे डाल सकते हो, अगर स्टेट लेवल पे भी डिसमिस हो गया तो फिर नेशनल लेवल पे डाल सकते हो. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, जिसका फुल फॉर्म है DCDRF, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल. एंड स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन SCDRC, एंड कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन NCDRC. ठीक है. This choice of court will depend on the amount of transaction and relief you seek and the location where the cause of action arises. अब ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, आपके अमाउंट पे और आपका लोकेशन पे, कि आपका जो कंज्यूमर राइट वायलेट हुआ है वो कौन से प्लेस पे हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट में, नेशनल पे और स्टेट पे फाइल कर सकते हो. आपने इसमें इस पूरे पिक्चर में आपने देखा होगा ड्यू टीचर्स गेट 45,000 फॉर फ्लॉड फोन बिल, कंज्यूमर पैनल क्रैक्स ओ नॉन सेल. तो इसमें आपने ये सब सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट में जाने से जो कंज्यूमर्स हैं उनको फ़ायदा हुआ है, प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ है, इस सब सारे पेपर के कटिंग से. पेन जाना फार्मा ने दिया सैकड़ों को धोखा. तो अभी यहाँ पे जो ये धोखा दिया हुआ है ये तो कब पता चला, जब ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने ये बताया कि इन्होंने धोखा दिया है, तो उसके खिलाफ जो केस है अब कोर्ट करेगी और जो पेनल्टीज है उनके ऊपर लगाएगी.
नेशनल नेशनल नेस्ले टू कोऑपरेट, नेस्ले आपको पता है एक उसकी कंपनी है चॉकलेट की, जिसके खिलाफ कुछ केसेस हुए थे और उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। नेशनल कंज्यूमर्स डे, हाँ नेशनल कंज्यूमर डे जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि कब मनाया जाता है। ओके, तो नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर, 24 December is celebrated as National Consumers Day. It was on this day that Indian Parliament enacted the Consumer Protection Act in 1986। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल कंज्यूमर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है एंड इसको सेलिब्रेट किस रीजन से किया जाता है। तो आपने देखा कि 24 दिसंबर 1986 को ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्ट हुआ था, यानी इट मीन्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नियम जो है 1986 में 24 दिसंबर को लागू हुआ था, इसलिए हम 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। India is one of the few countries that have exclusive code for consumer redressal. The consumer movement in India has made significant progress in recent times. At present, there are more than 700 consumers group. Out of them, about 20 or 25 are well organized and recognized for their work. तो आपने इसमें देखा कि वर्ल्ड में कुछ ही ऐसी कंट्री है जिनके पास ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रूल्स है और कोर्ट है, और इसके वजह से हमारे कंट्री में 700 कंज्यूमर ग्रुप्स डेवलप हो चुके हैं जो कंज्यूमर्स का ख्याल रखते हैं, और जिसमें 20-25 के करीब ऐसे हैं जो बहुत वेल रिप्यूटेटेड एंड वेल और रीऑर्गेनाइज्ड हैं, जो किसी भी कंज्यूमर के प्रॉब्लम को नेशनल लेवल स्टेट लेवल पे रेज करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कंज्यूमर ड्यूटीज़, अब भी हमारी ड्यूटीज़ भी है, जैसे हम एज ए कंज्यूमर, जैसे मान लो आप सामान खरीदने जा रहे हो तो आप कंज्यूमर हो, तो आपकी कुछ ड्यूटीज़ बनती है, और ड्यूटीज़ क्या क्या है। मेक श्योर दैट योर कंज्यूमर राइट्स आर रिस्पेक्टेड। आप जब लेने जाते हो तो आपके जो कंज्यूमर राइट्स हैं उनका रिस्पेक्ट किया जा रहा है। शॉपकीपर मतलब शॉपिंग मॉल में शॉपकीपर ये लोग करना चाहिए जो जो हमने पढ़ाया क्या क्या राइट्स हैं। Complain if you are not satisfied with products and service, even if you are not personally affected। अगर आप ऐसा देखते हो कि आपका वायलेशन हो रहा है, ठीक है, आपके अगर जो राइट्स है उसका वायलेशन हो रहा है, अगर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही पर्सनल वायलेशन हो रहा है, अगर किसी और का भी वायलेशन हो रहा है तो इस केस में भी यू कैन पुट योर प्रॉब्लम इन अ कंज्यूमर फोरम और इन कंज्यूमर कोर्ट। Demand a refund or replacement for inferior products and service even if the money involved is small. Read all documents carefully before signing and make sure that you understand the contents. Be informed in the language you understand। तो आपने इसमें देखा कि आपकी कुछ ड्यूटीज़ है, उस ड्यूटीज़ को फॉलो करना है। अगर कहीं भी आपके राइट का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उस केस को आगे पुट करना है, फॉरवर्ड करना है। अगर अगर किसी छोटे ही पैसे का ही कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आपको आगे फॉरवर्ड करना है, और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है तो आपके लैंग्वेज में ही दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश जानते हो तो आपको कोई अपना चाइनीज़ भाषा में समझा रहा है, और आप इंग्लिश जैसे हिंदी जानते हो तो कोई इंग्लिश भाषा में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भी गलत है। आप जो लैंग्वेज जानते हो उस लैंग्वेज में जो प्रोड्यूसर है आपको उसका सारा इन्फॉर्मेशन देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो राइट टू इन्फॉर्म्ड जो आपका राइट्स है वो वायलेट होगा, और उसके अगेंस्ट में आप कंज्यूमर फोरम कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हमारी ड्यूटीज़ है, और ये हमने सिंबल पढ़ा, ये सिंबल हॉलमार्क है जो गोल्ड के लिए होता है, ये सिंबल जो है और एग्रीकल्चर के लिए है, और ये सिंबल जो है इंडस्ट्रियल में ISI का सिंबल है। तो आपने देखा कि कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर राइट्स क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, और एगमार्क क्या है, BIS क्या है, हॉलमार्क क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा, तो इसके आप नोट बना लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। बहुत बहुत